کہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائی، نہیں بھائی ہم تھوڑی بول رہے، تمہارا دعویٰ ہے، تم کیا بولتے ہو؟ ہم تو مسلمان ہیں۔ اچھا تم مسلمان ہو؟ شیعہ بھی اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہیں؟ کہتے ہیں نا، سب کہتے ہیں، ہم نے کب کہنا ہے؟ بڑے ہی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو سارے مسلمان لیکن ہوئے آگے نا؟ تم مسلک لگا رہے ہو نا، ہم مسلک نہیں لگا رہے۔ سب مسلمان ہوئے نا سر؟ ارے بھائی مسلمان تو ہم سب کو ہی مانتے ہیں، لیکن تم نے جو مسلک لگایا، یعنی کہ سارے کے سارے جنتی ہیں؟ نہیں تم نے مسلک لگائی ہے نا آگے، تم نے اپنی اچھا پہچان مسلک بدلی نہیں ہے۔ لگانا؟ ہم نے پہچان نہیں بدلی اپنی، اچھا ہم مسلک نے جو لگائے گا وہ کیا مسلمان ہے؟ ہی کہا۔ تم نے کیا لگایا؟ میں ہم حنفی، بریلوی، رضائی، اس نے لگایا ہم اچھا جو دیوبندی، یہ ہم مسلک اہل لگاتا حدیث، ہے، جو یہ ہم مسلک لگاتا عطریہ، ہے وہ غلط ہم ہے؟ امامیہ، یہ تم نے کہاں سے لایا؟ ہاں سنو تو، جو یہ ساری چیزیں لگاتا ہے وہ غلط ہے؟ ہاں تو غلط ہے نا، کہاں ہے اس میں قرآن حدیث میں کدھر؟ یعنی بتاؤ۔ کہ امام مسلم فرماتے ہیں، اپنے مقدمے میں لکھا انہوں نے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے حدیثیں لیتے ہیں، تو یعنی کہ انہوں نے غلط کیا؟ بھائی معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب میں سوچ سمجھ کے تو بولو جناب، ارے امام نبی مسلم پہ کیا اور حکم اللہ لگا رہے رسول کی تھے؟ بات کروں گا یا امام مسلم کی بات کروں؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ اللہ۔ کیا دیکھو کہہ رہا بھائی، ہے؟ اللہ نے تمہارا بالکل نام کیا بالکل کہا؟ یہ اونلی مسلم اللہ ہے، نے اور تمہارا صحیح نام کیا مسلم کیا کے ہے بتا۔ امام کے اوپر کیا حکم لگا رہے ہیں کہ انہوں نے میں نے یہ حکم غلط نہیں ہے؟ لگایا بھائی، یہ تو تیرے نا باتوں میں اپنی میرے کو مت گھما۔ میں نے کیا کہا؟ یہ اللہ نے امام تمہارا نام کیا مسلم رکھا؟ کے اوپر کیا حکم لگا رہے ہیں کہ یہ اللہ سب نے غلط ہے؟ تمہارا نام قرآن میں کیا رکھا ہے؟ بریلوی، ٹھیک ہے، دیوبندی، اہل حدیث۔ آپ کو پتہ چلا کہ جن جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اہل سنت ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں، ارے بھائی اہل سنت سے مطلب کیونکہ کیا یہ ہے؟ صرف مسلمان ہیں، ارے اور جنہوں نے اہل سنت تو کہا ہے اہل وہ سب سنت غلط تو ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سب اہل غلط ہوئے سنت سے نا؟ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت سے مطلب کیا اہل ہوتا ہے؟ سنت تم نے کہا خالی مسلمان، اہل ہاں، سنت غلط ہوئے ہماری پھر؟ پہچان ہے، ہم خالی مسلمان ہیں، تو کیونکہ اہل اللہ سنت قرآن کہہ میں رہا کیا ہے، کہہ امام رہا ہے؟ مسلم اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے، اللہ وہ سب قرآن غلط میں ہیں؟ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی امام مسلم شریف لکھنے والے امام مسلم غلط ہوئے سر؟ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ امام مسلم غلط ہوئے پھر، اس کا مطلب؟ ارے ان کو بولو کیا ارے قرآن امام شریف ان کی مسلم جو کہانی ہے ہے کیا؟ وہ غلط ہوئے نا؟ کہے کہ میں مسلم ہوں۔ تو امام مسلم غلط ہوئے نا؟ ارے بھائی ان کا اپنا قول ہے، اچھا تو وہ غلط ہوئے نا؟ اس معاملے میں تو غلط ہی ہو گیا اگر وہ کہہ رہے تو، کہ ہم تو ارے قرآن معاذ کہہ رہے ہیں، اللہ، ہم تو استغفر قرآن اللہ، بتا معاذ رہے اللہ۔ ہیں، ہم تو قرآن بولو، بتا رہے ہیں، معاذ اللہ کیا اللہ، کہہ رہا استغفر ہے؟ اللہ۔ اس تو شخص یہ سے بتایا بہتر وہ کون بھائی، ہے بالکل بالکل جو ایسے عمل لوگ نیک کرے اور یہ کہے کہ میں بیماری مسلم ہے ہوں؟ قوم کے لیے، سمجھ رہے ارے ہو؟ اہل سنت والجماعت ایسے سے لوگ مراد جو کیا ہے ہے؟ نا تو وہ بتا قوم دو کے گے۔ لیے بیماری ہیں۔ ارے اہل سنت والجماعت سے امام مراد کیا مسلم ہے؟ تک کو انہوں نے کہا ہے کہ غلط ہو گیا۔ معاذ اللہ بات رب کر العالمین۔ ٹھیک ہے، اچھے سے بات کر۔ ان کی یہ خالی حدیث نہ لے لیں گے اور ان کو غلط بھی کہہ دیں گے۔ انہوں نے فتوا لگا دیا، اب میں نے دیکھو کوئی یہ غلط یہاں بھی فتوا نہیں پھنسیں گے، لگایا۔ رہو جائے ابھی دیکھتے رہنا، مزہ آئے گا اور سن رہے سنتے رہنا۔ بات انسان ہے نا، چلو غلطیاں صحیح ہوتی ہوتا ہے، ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ہاں کیا کہتا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، اس شخص سے ہاں، بہتر کون ہے جو نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلم ہوں۔ کہے کہ میں مسلم ہوں۔ ہاں بس۔ اچھا یہ بتاؤ، تم پیدا ہوئے، تمہارے اماں باپ نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، کیا رکھا تھا؟ ابے یہ تو دینی نام اور دنیائی نام الگ ہے۔ نبی کا کہاں نام کیا لکھا ہے یہ نہیں، دینی نبی اور کا دنیا نام میں کیا ہے؟ الگ الگ ابے فرق نبی کرنا کا ہے؟ نام کیا ہے؟ اللہ نبی نے صلی کہاں اللہ علیہ کہا کہ تم محمد صلی اللہ مسلمان علیہ نام مت وسلم رکھنا، نام چینج کر لینا، کہاں کہا ہے؟ نبی کا نام کیا ہے؟ محمد ارے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ یا رب مسلمان؟ العزت نے کیا کہا؟ میں نے کیا کہا؟ اللہ نے نبی کہا کو میں نے کیا مسلمان بلاتے نام ہو؟ رکھا ہے، نہیں، تم نے نبی ثابت رکھ کو لیا۔ کیا بلاتے ہو؟ تو اس بات کو لے کر کے بولے کہ اللہ نے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب تو یہی دیں گے کہ پھر اللہ نے مسلمان کیوں رکھا اور نبی علیہ السلام نے اپنا نام محمد کیوں رکھا؟ انہیں بھی مسلمان رکھنا چاہیے تھا۔ دنیائی پہچان الگ ہے، دینی پہچان الگ ہے۔ ہم دینی کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ سب باتیں؟ کہاں لکھی ہیں قرآن میں؟ میں نے تو مطلب اس کا مطلب کہ اللہ میں نے کہا یہ بات جو تم بول رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھی ہے کہ دین میں الگ نام رکھو اور دین میں مسلمان نام رکھو اور دنیا میں دوسرا نام رکھو؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں یہ؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے مطلب؟ میں نے کہا کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ساجد رکھو اپنا نام؟
मतलब नबी ने फिर अपना नाम मोहम्मद क्यों रखा? नबी की वो तो इसका जवाब तुम दोगे। एक मिनट रऊफ भाई, इसका जवाब दोगे तुम बताओगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपना नाम मोहम्मद क्यों रखा जबकि अल्लाह ने उनका कुरान में मुसलमान रखा था। तुम बताओगे। हाँ पहले तो इनसे पूछो साजिद भाई से कि भाई साहिल भाई जो है वो तो अहले हदीस है, आप मुस्लिम हो, तो आपका दोनों का तो मौक़िफ़ अलग अलग है, तो फिर आप एक साथ बात क्यों कर रहे हो? वो छोड़ो, ये अभी ये बताएंगे कि जब ये कह रहे हैं ना अल्लाह ने कुरान में सबका नाम मुस्लिम रखा है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपना नाम मोहम्मद क्यों रखा? फिर ये बताएंगे अभी। और इनने साजिद क्यों रखा है, बताओ जल्दी। कहाँ भागे? पकड़ के लाओ जल्दी, पकड़ के लाओ, पकड़ के। इतने बड़े जाहिल खबीस होते हैं ये लोग। कह रहे हैं अल्लाह ने कुरान में सबका नाम मुसलमान रखा है, तो तुम बरेलवी या फिर अपने आप को अहले सुन्नत क्यों कह रहे हो? और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह को ये कह रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ गलत है कि उन्होंने अहले सुन्नत जमात को तस्लीम किया है। समझ रहे हो, इतने बड़े तो जाहिल होते हैं ये लोग। लो कॉल पे लो कॉल पे लो। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking. अरे जोड़ फोन कर। तो मैं ये कह रहा हूँ, फोन काट के मत भागो। मैं ये कह रहा हूँ नबी अलैहिस्सलाम ने अपना नाम मोहम्मद क्यों रखा जबकि अल्लाह ने कुरान में उनका नाम मुस्लिम रखा था, और तुमने साजिद क्यों रखा? बताओ। हाँ, ये कुरान में कहाँ लिखा है? ये कुरान में कहाँ लिखा है अल्लाह ने कि मैंने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है दीन में, और दुनिया में तो अपना नाम चेंज कर दो? मैंने सुनो, पहले मैं पूछ रहा हूँ ये बात कुरान में किस आयत करीमा में लिखी हुई है कि ये तुम दीन में अपना नाम मुसलमान रख लो और दुनिया में अपना नाम साजिद रख लो, और या फिर कुछ और रख लो? बताओ। मैंने कहा कि तुम कह रहे हो कि कोई और नाम नहीं रख सकते, तो तुमने अपना नाम साजिद क्यों रखा, और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपना नाम मोहम्मद क्यों रखा जबकि अल्लाह ने कुरान में मुसलमान रखा है? चलो बताओ। हाँ, तुम्हें एतराज है ना कि हम बरेलवी क्यों कहते हैं, तो तुम अपने आप को साजिद क्यों कहते हो जबकि तुम्हारा नाम कुरान में अल्लाह ने मुसलमान रखा है? चलो बताओ। तुमने अपने आप को साजिद क्यों कहा जबकि अल्लाह ने कुरान में तुम्हारा नाम मोहम्मद मुसलमान रखा है? चलो बताओ। तो कहाँ लिखा है कि दुनिया में साजिद रखो और दीन में मुसलमान रखो? कहाँ लिखा है? अरे कहाँ लिखा है? तुमने झूठ बोला कुरान शरीफ पे। देखो, रऊफ भाई ने झूठ बोल दिया कुरान शरीफ पे कि दुनिया में मुसलमान रखो और दीन में साजिद रखो। इन्हें झूठ बोल दिया, कुरान शरीफ में कहीं नहीं लिखा है ये। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम जो साजिद है ये कहाँ लिखा है कुरान में? मैंने कहा ये साजिद जो नाम है, अच्छा तुम्हारा नाम मुसलमान है कि साजिद है? तुम्हारा नाम साजिद है कि मुसलमान है? क्या नाम है तुम्हारा? साजिद है कि मुसलमान है? तुम्हारा नाम क्या है चचा? ओ चचा, मैंने कहा कि ये तुम्हारा नाम साजिद है या फिर मुसलमान है, क्या है? और अगर मुसलमान है तो साजिद क्यों रखा, और अगर साजिद है तो मुसलमान क्यों कहते हो अपने आप को? और अगर तुमने ये कहा कि तुम साजिद भी रखोगे मुसलमान भी रखोगे, तो फिर कुरान से दलील दो कि साजिद और मुसलमान दोनों नाम रख सकते हैं। बताओ। मैंने कहा कि साजिद नाम क्यों रखा? बदतमीजी मत करो चचा, तुम्हारी उम्र हो गई है, पूरी टांगे कबर में लटक रही है, पर नीचे से कोई भी खींच लेगा, समझ रहे हो? पूरी जिंदगी तुम्हारी कबर में गुजर जाएगी। खत्म तो हो गई है जिंदगी, थोड़ी बहुत बची है, जहालत में मत काटो। मैंने कहा कुरान में तुम्हारा नाम मुसलमान रखा गया है, तो तुमने अपना नाम साजिद क्यों रखा, ये बताओ। अरे क्यों रखा साजिद तुमने? और फिर इमाम मुस्लिम ने पूरी जमात का नाम अहले सुन्नत क्यों लिया? इमाम मुस्लिम ने क्यों लिया अहले सुन्नत का नाम? तुम्हारे हिसाब से तो तुमने इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु को तो तुमने गलत कहा ही है। और जिस मुहद्दिसीन ने गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने जो इमाम तबरानी, इमाम
शाफी, इमाम मालिक और इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह, जिन ने अहले सुन्नत का नाम लिया तुमने सबको गलत कहा उस दिन, क्योंकि तुमने कहा ये गलत है, अहले सुन्नत कहना गलत है। तो अब चचा, बुढ़िया हुए चचा, उम्र गए हुए चचा, कब्र में गिरते हुए चचा, ये बता दो कि तुमने कुरान में मुसलमान नाम है तो तुमने अपना नाम साजिद क्यों रखा? किसने रखा? कुरान में तुम्हारा नाम साजिद भी रख लो, मुसलमान भी रख लो, कहाँ लिखा हुआ है कुरान में? बताओ जल्दी। तुम कुरान से मसलक की दलील मांग रहे हो ना, तो फिर तुम कुरान से साजिद की दलील दो। अरे साजिद रखने की दलील दो कुरान से। जब तुम अहले सुन्नत रखने की दलील कुरान से मांग रहे हो तो फिर साजिद नाम रखने की दलील कहाँ से दोगे? वो भी तो कुरान से दोगे। तो कुरान से दलील दो। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हारा नाम साजिद रख के कुरान के अंदर एक नई बिदअत को दाखिल कर दी। मैंने कहा कि साजिद नाम कुरान में दिखाओ जल्दी। तुम्हारे नाम का नाम, बाप का नाम क्या है, वो भी नाम दिखाओ। इसका मतलब बरेली भी रखना गलत है और साजिद भी रखना गलत है। अगर बरेलवी कुरान में नहीं है तो साजिद भी कुरान में नहीं है, तो दोनों गलत हुए ना, क्यों? कुरान में तो मुसलमान है, तो चचा दोनों नाम गलत हुए ना फिर। यानी कि साजिद भी गलत है और बरेलवी भी गलत है। फिर तो तुम कह रहे हो कि बरेलवी नाम कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, तो मैंने कहा साजिद भी कुरान हदीस में दिखाओ। अगर तुम्हारे हिसाब से कुरान हदीस में बरेलवी नहीं है तो साजिद भी नहीं है, तो अगर बरेलवी गलत है तो होगा साजिद भी गलत। ऐसा थोड़ी है कि आधी शरीयत तुमने अपने हिसाब से गढ़ ली और आधी शरीयत को तुमने छोड़ दिया। तो अब मुझे ये बताओ, साजिद नाम कुरान में जब नहीं है तो तुमने क्यों रख लिया? ये बताओ, तुमने अपना नाम मुसलमान क्यों नहीं रखा? जब अल्लाह फरमाता है कि ए लोगो हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, तो तुमने साजिद क्यों रख लिया? अल्लाह की बात क्यों नहीं मानी? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जिसने मेरी बात का इनकार किया उसे हम जहन्नुम में दाखिल करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा और तुमने अपना नाम साजिद रख लिया, तो तुमने अल्लाह की बात को ठुकराया और तुम जहन्नुम में जाओगे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि हम उनको जहन्नुम में डालेंगे जिनने हमारी बात से इनराफ किया, यानी हमारी बात मानने से इनकार किया। तो तुमने अल्लाह की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारा नाम कुरान में मुसलमान रखा और तुमने अपना नाम साजिद रख लिया। और तुम यहाँ हमें भाषण दे रहे हो कि दीनी नाम, दुनियावी नाम। तो फिर ये बात को पूरे कुरान शरीफ में कहाँ लिखी हुई है कि दीन में तुम मुसलमान नाम रखो और दुनिया में तुम कोई भी नाम रख लो? और फिर तुम ये बताओ, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना नाम मोहम्मद क्यों रखा, जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सबका नाम मुसलमान रखा था? ये भी तुम बताओगे। फिर नबी अलैहिस्सलाम के बाद जितने तमाम सहाबा हैं तो उनका नाम सहाबा क्यों रखा गया, जबकि उनका नाम मुसलमान रखा गया था? तो उनको सहाबा क्यों कहा जाता है जबकि उनका नाम मुसलमान रखा है कुरान में? फिर असहाबे सुफ़ा, मुहाजिरीन मक्का, अंसारे मदीना, ये सारे नाम क्यों रखे गए जबकि कुरान में अल्लाह ने सिर्फ मुसलमान कहा? अबे बेवकूफ आदमी, कुरान से दलील दो कि कुरान में मुसलमान रखा गया है, तो ये सारे नाम क्यों रखे गए फिर? जाहिल इंसान कहीं का। दो कौड़ी के इल्म नहीं होते हैं, दो कौड़ी के इल्म नहीं होते हैं, जाहिल कहीं के। सोचने वाली बात है। पूरी अहले सुन्नत वल जमाअत, समझ रहे हो, बड़े बड़े आइम्मा इकराम, मुहद्दिसीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के बड़े बड़े औलिया इकराम, सारे लोग अहले सुन्नत वल जमाअत पे अमल करते रहे, बोलते रहे कि हम अहले सुन्नत हैं। और ये जाहिल आगे कहता है कि इमाम मुस्लिम ने ये अगर अहले सुन्नत का नाम लिया है तो वो गलत है, उनकी अपनी राय। अल्लाह ने कुरान में मुस्लिम नाम रखा है। अबे जाहिल कहीं का, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुस्लिम नाम रखा है तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा का नाम मुसलमान रखना था ना? सहाबा क्यों रखा? उनको सहाबा कहा ही क्यों गया जबकि वो मुसलमान थे? अंसारे मदीना को अंसारे मदीना क्यों कहा गया? मुहाजिरीन मक्का को मुहाजिरीन मक्का क्यों कहा गया? और फिर इनको अंसार क्यों कहा गया, उनको कुरैश क्यों कहा गया? ये सारे नाम भी क्यों कहे गए जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान ही रखा था? तो ये सारी बातें तो यानी कि तुम हमसे सवाल नहीं कर रहे हो, नबी अलैहिस्सलाम से सवाल कर रहे हो। रही बात अपने आप को बरेलवी कहने की, तो जैसे हम दुनिया में अपनी पहचान के लिए अपना नाम रखते हैं, मैं अपना अमन रख लूं या तुम्हारा रऊफ हो जाए या जाहिल का साजिद हो जाए, ठीक इसी तरकीब से ये दुनियावी नाम है। जब तुम दुनिया में नाम रखने को जायज कह रहे हो तो बरेलवी भी तो दुनियावी नाम है। ये कौन सा हम कह रहे हैं कि बरेलवी कुरान शरीफ में आया है, हदीस शरीफ में आया है? हम ये कह रहे हैं जो हम कुरान और हदीस में दिखाएं। हम तो खुद कह रहे हैं कि दुनिया में, हमारी दुनिया में पहचान हो जाए। एक मिनट रुको, हमने तो बरेलवी दुनिया में पहचान होने के लिए कहा है, दुनियावी नाम है।
जाहिल कहीं के, इतना नहीं समझते। लो उठाओ उसका फोन, उठाओ उसका फोन। लगाना पड़ेगा रुको। ना आने दो, उधरी से आने दो। तो इतने बड़े जाहिल होते हैं ये लोग ना, उधरी से आने दो। आप काट जिस के व्यक्ति से भाग बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया कॉल लाइन काट पर के बने भाग रहे हैं, रहें। उसके बाद कॉल The कर रहे person हैं। you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. उठाया, भेजी जा रहा, भेजी। भेजी। अब सुनो, कोई भी बरेलवी ये नहीं कहता कि कुरान शरीफ में बरेलवी आया है इसलिए हम कहते हैं, या फिर हदीस शरीफ में बरेलवी आया है इसलिए हम कहते हैं। कोई नहीं कहता। सब यही कहते हैं कि दुनिया में पहचान के लिए बरेलवी कहते हैं, जैसे कि हम अपने नाम रखते हैं पहचान के लिए। और ये जाहिल कहीं के हमसे कुरान और हदीस से दलील मांग रहे हैं, जबकि हम कह ही नहीं रहे ये बात कि कुरान और हदीस में लिखा है। जब हम ये कहें कि कुरान और हदीस में लिखा है तब तुम हमसे दलील मांगो। जाहिल कहीं का कह रहा है तो फिर अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा, तुमने बरेलवी क्यों कहा? अबे जाहिल कहीं के, ऐसे तो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा का नाम था तो उनको सहाबा क्यों कहा, फिर अंसार क्यों कहा, मुहाजिरीन मक्का क्यों कहा, कुरैश क्यों कहा, हाशम क्यों कहा, ये सारी चीजें क्यों कहीं, जब यही चीज थी पहचान के लिए। इतने बड़े खबीस होते हैं, इनका सवाल हम पे कर हमसे रहे लेकिन जाके इन पे रहा है नबी अलैहिस्सलाम पे। तो ये जाहिल जिनके पास दो कौली के इल्म नहीं होते, दो कौली का इल्म नहीं होता, वो आ जाते हैं सवाल करने के लिए, समझ रहे हो? तो पहले इनके सवाल को समझो और इनके सवाल को ये देखा करो कि वाकई क्या इनका सवाल जो है वो कुरान और हदीस से सही है। इनके सवाल ही कुरान और हदीस से नहीं होते हैं तो तुम उसका जवाब क्या दोगे? तो हमारे प्यारे सुन्नी भाइयों से ये कहना है कि आपने इस रिकॉर्डिंग को सुना होगा तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि ओनली मुस्लिम के नाम पे ये लोग कैसे सुन्नी भाइयों को धोखा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इनकी हकीकत पता चले और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।